Very good afternoon, students. Now we come on the next lecture of again a complex analysis. In previous lectures, what we have seen analytic functions, problems on that analytic functions, and next we comes on the transformation. Now there is a transformation, or we can call it as a mapping. What is that transformation? We see the first definition: a rule or a correspondence that associates any point z. That should be in the form of x and y in a z plane with a unique point w equals to uv in a w plane is called as a transformation, or it is also called as a mapping, which can be written in this form, that is f is a mapping from z plane to w plane. Now there are we have to study that different types of transformation here. Transformation means what? That in short, if you say that one function can converts into another by some relations or by some correspondence, that is called as a transformation. So there is some standard types of transformation. First is a standard transformation. Now how we can define that transformation? That should be in the form of w equals to z plus c. What about z? Z is a complex variable. It should be in the form of x plus iy. And what about c? C is a complex constant. Again it is in the form of complex a plus ib. But what about that a and b? These are a constant. X and y are real variables. And how we define the w? W should be in the form of u plus iv. So how we write that mapping? If you replace that in this value, that is w is replaced by u plus iv, that is equals to z is in the form of x plus iy plus that c is in the form of a plus iv. So after simplification, what we get? We get u plus iv is equals to, if you collect the real and imaginary part, u plus iv is equals to x plus a plus I into y plus b. So what we see here, simply there is a expansion of axis. That means initially there is a x, and here now if you add that plus c, x plus a, here is a y plus b. Simply what we say that transformation is simply the translation of the axis. क्या हो रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन में? एक्सिस की ट्रांसलेशन हो रही है, मतलब एक्सिस बढ़ रही है एंड इट प्रिजर्व द शेप एंड साइज. मतलब अगर हम किसी जेड प्लेन में एक सर्कल का इक्वेशन है एंड वी हैव टू टेक द मैपिंग और करस्पॉन्डेंस ऑफ दैट सर्कल और दैट इक्वेशन इन अनदर प्लेन, दैट इज अ डब्ल्यू प्लेन, तो उसकी जो इमेज होंगी डब्ल्यू प्लेन में, सो ऑब्वियसली दैट इज अ सर्कल ही होंगी, बट मे बी देयर इज अ चेंज इन अ शेप एंड देयरफॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स द शेप एंड साइज. अगर एक सर्कल होगा डब्ल्यू जेड प्लेन में, तो डब्ल्यू प्लेन में भी उसकी इमेज सर्कल ही होंगी. नेक्स्ट इज अ रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन मैपिंग. यहाँ पे हाउ वी डिफाइन दैट मैपिंग? w equals to zc. Now how we define that z? Z is in the form of polar, that is r into e raised to I theta. C is also in the form of polar, rho into e raised to I alpha. Again it is a complex form. Then complex constant w equals to capital R into e raised to alpha. So how we can take that relation? So we put all that values here. W is a r e raised to alpha equals to that z and that c. After a simplification, r into rho e raised to I theta plus alpha. So what we see here, that capital R, that is a radius vector. If you consider capital R, that should be in the form of r into rho, and phi, that angle, that is equals to theta plus alpha. So what we say that here, the transformations maps a point p of r theta in a z plane into the points p dash of rho r comma theta plus alpha in a w plane. मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेडियस वेक्टर मल्टीपल हो रहा है रो इंटू आर के फॉर्म में, और जो एंगल है दैट बिकम अ थीटा प्लस अल्फा. सो दैट इज द रोटेशन मैग्निफिकेशन. एंड नेक्स्ट इज इन्वर्शन. अगर ऐसे फॉर्म में मैपिंग रहती है w इक्वल्स टू 1 बाय z, w इक्वल्स टू 1 बाय z, दैट इज कॉल्ड एज अ इन्वर्शन मैपिंग. और यहाँ पे जो z डिफाइन किया रहता है, अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोलर रहता है, r into e raised to I theta. So if you put that value of z here, so what about w? W equals to 1 by e raised to minus I theta. मतलब यहाँ पे जो एंगल रहेगा थीटा वो रिवर्स हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, एंड रेडियस वेक्टर दैट बिकम 1 बाय r व्हेन यू टेक अ इन्वर्शन मैपिंग. सो दीज आर some definitions of that mapping or transformation. And now we comes on the problem. So simply remember that mappings form or that equation, w equals to z plus c, w equals to z into c, and w equals to 1 by z. That is inversion, that is a rotation magnification, and that is the standard
transformation. And now we see the problems one by. Now the students, based on this previous transformation, we see some problems. So first problem is find the image of the circle mod z is equals to 2. ये circle का equation है mod z is equals to 2 and under the transformation w equals to z plus 3 plus 2i we have to find the image of that circle. So सबसे पहले तो हम given transformation लिख लेते हैं. What is our given transformation here? So what is that? That is a w equals to z plus 3 plus 2. We give their notation that how we can express w and z. Suppose we consider that here let w should be in the form of u plus iv. अब जनरली हम जो नोटेशन लेते हैं, कभी हम w को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, कभी w को कार्टेशियन. सो दैट इज डिपेंड ऑन द इमेज और दैट व्हाट वी हैव टू शो, ऑफ विच पार्ट वी हैव टू शो द इमेज. अब यहाँ पे हमने सर्कल दिया है, तो सर्कल हम जनरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ऐसे फॉर्म में दिखाते हैं. तो हियर वी कंसिडर द कार्टेशियन फॉर्म. सो डब्ल्यू इक्वल्स टू यू प्लस आई वी एंड जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई. So suppose that is our equation number 1 and if you put that value in equation 1 and therefore equation 1 implies, अब यहाँ पे क्या होगा, w is replaced by u plus iv, so it become a u plus iv equals to we replace z by x plus iy plus 3 plus 2i. अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट. यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फॉर्म में है एंड दैट इज द function of complex variable which is depend on that z plus 3 plus 2i. So you have to see the image from of that for that given transformation, the image of the circle mod z is equals to. अब यहाँ पे हम सेपरेट कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट. क्या रहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो दिया रहता है हमें, फ्रॉम दैट ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव टू टेक अ रिलेशंस इन बिटवीन यू वी एंड एक्स वाई एंड देन यू हैव टू यूज दैट रिलेशन इन दैट गिवन रीजन or that given equation and from that you can take the image. मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिया रहता है उस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना पड़ता है हमें, जो इक्वेशन दिए हैं उस इक्वेशन में, और फ्रॉम दैट इक्वेशन यू हैव टू गेट द इमेज यूजिंग दैट रिलेशन. सो वी सी दैट. सो u प्लस आई वी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 3 करेंगे हम क्योंकि रियल पार्ट कलेक्ट कर देंगे, प्लस i की जो टर्म है वहाँ से i कॉमन निकालेंगे तो वो हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट. So from that what you say that u is equals to, we get from that relation, that is from the transformation we get that relation u is equals to x plus 3 and v is equals to y plus 2, we get that relation. Okay, अब ये relation हमें इस जो भी हमें इमेज निकालनी है जिस इक्वेशन की या जिस सर्कल की या फिर स्ट्रेट लाइन की या फिर हाइपरबोला पैराबोला, जो कुछ भी इक्वेशन दिया रहता है वी हैव टू यूज दैट रिलेशन फॉर दैट गिवन इक्वेशन. सो व्हाट इज अ गिवन रीजन? क्या रीजन है हमारे पास? गिवन रीजन क्या है? गिवन रीजन इज अ सर्कल दैट इज मॉड z इज इक्वल्स टू 2. अब ये सर्कल के डायरेक्ट सर्कल के इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया है हमें, इट शुड बी इन द फॉर्म मॉड z इज इक्वल्स टू 2. तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. अब हमने जैसे कि हमने यहाँ पे z को एक्सप्रेस किया है x प्लस आई वाई के फॉर्म में. अब मॉड z हमें पता है कि मॉड z क्या रहता है, अगर z कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है तो मॉड z क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. ये आप लोगों को पता है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखा है कि z इज, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हाउ वी कैन डिफाइन द मॉड ऑफ दैट z एंड एज वेल एज एम्पलीट्यूड ऑफ दैट z. तो मॉड z इक्वल्स टू 2 मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज मॉड ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू 2. दैट इम्प्लाइज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. अब ये इक्वेशन जो भी है इट इज इन द फॉर्म ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू. अब रूट में अगर इक्वेशन रहेगा सो वी कांट सिंप्लीफाई दैट. सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर्कल का इक्वेशन दिखाना है वहाँ पे, तो रूट की जो वैल्यू है हमें उसको स्क्वायर करना पड़ेगा. सो टेक अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेक अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. इफ यू अप्लाई द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा एंड वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर एंड दैट इज नथिंग बट अ 4. अब अगर थोड़ा ध्यान से इस इक्वेशन को देखेंगे, सो दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर plus y square is equals to 4. That 4 is nothing but a 2 square. So how we can say that is the equation of a standard equation of a circle with a center 0 0 and radius is a 2.
आप लोगों ने ये इक्वेशन बहुत बार देखा है, इस पे प्रॉब्लम भी सॉल्व किए होंगे। हमें पता है सर्कल का इक्वेशन कैसा रहता है। ये है हमारा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ अ सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज 2। तो ये तो आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। मॉड z इक्वल्स टू 2 को हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे प्रॉब्लम जो भी रहेंगे जनरली वो ऐसे ही दे रहेंगे, यू हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। सो हमें क्या निकालनी है, हमें इमेज निकालनी है इस सर्कल के इक्वेशन की। अब हम क्या करेंगे, हाउ वी गेट द इमेज। अब हमारे पास दो रिलेशन है, u एंड v आर इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है वो x और y के फॉर्म में है, बट हमें इक्वेशन कन्वर्ट करना है u और v के फॉर्म में। u और v के फॉर्म में इसलिए करना है क्योंकि उसकी इमेज जो रहेंगी वो w प्लेन में रहेंगी, और w प्लेन में अगर इमेज रहेंगी तो w हमारा कैसे एक्सप्रेस किया है, इन टर्म्स ऑफ u एंड v। सो ऑब्वियसली इमेज भी कैसे रहेंगी, इन टर्म्स ऑफ u एंड v। अब ये इमेज निकालने के लिए हम रिलेशन कौन सा यूज करेंगे, हमें पता है कि u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। सो ऑब्वियसली x इज इक्वल्स टू u माइनस 3 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ये 2 इधर जाएगा तो v माइनस 2 हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, फ्रॉम दैट रिलेशन यू कैन टेक अ वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ यू वी और वैल्यू ऑफ यू वी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। अब जैसे हमें इक्वेशंस दिए रहेंगे उस प्रायोरिटी के हिसाब से हमें वैल्यू ले लिए। अब जैसे हमारा इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्म में है गिवन रीजन, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे यू वी के फॉर्म में यूजिंग दैट रिलेशन। एंड देयरफॉर सपोज वी गिव इट इक्वेशन नंबर बोथ, यहाँ पे ऑलरेडी 1 दिया है, इसको हम 2 दे देंगे और इसको हम 3 देंगे। सो यूजिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग 2 and 3 इन दैट अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन। सो व्हाट वी गेट, सी हियर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x रिप्लेस हो जाएगा हमारा u माइनस 3 होल स्क्वायर से, और y रिप्लेस हो जाएगा हमारा v माइनस 2 होल स्क्वायर से, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। ओके, नाउ इट कम्स ऑन दैट साइड। अब इस साइड आ जाते हैं। ये ऑलरेडी मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा है, उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। ये स्टेप हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो व्हाट इज अवर स्टेप, दैट इज अ u माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस v माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। अब इक्वेशन को हम करेंगे सिंप्लीफाई। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2 इंटू यू इंटू 3 दैट इज 6u प्लस 9 हो गया ये, और ये हो गया हमारा v स्क्वायर माइनस 4v प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो ये हो गया हमारा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 6u माइनस 4v प्लस 13, और ये माइनस 4 प्लस 4 हम इस साइड ले लेंगे तो माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो दैट गिव्स u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 6u माइनस 4v प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब अगर थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो अगेन इट बिकम इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। बट यहाँ पे ये कौन सा इक्वेशन है, सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर रेडियस फॉर्म, ऐसे फॉर्म में रहता है ये इक्वेशन। सो अगेन इट इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब अगर हमने इसकी इमेज देखी, ये क्या था, गिवन रीजन मॉड z इज इक्वल्स टू 2 दैट इज आल्सो सर्कल, एंड इफ यू कंसीडर द इमेज ऑफ दैट इज आल्सो अ सर्कल। और अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे आप, तो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा था, w इक्वल्स टू z प्लस 3 प्लस 2 है। दैट मीन्स दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ w इक्वल्स टू z प्लस c विच वी हैव सीन, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और हमने उसमें देखा भी था कि स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में शेप और साइज चेंज होते नहीं है, सिंपली देयर इज अ ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। मतलब सर्कल की जो इमेज है वो क्या आ रही है, सर्कल ही आ रही है, वहाँ पे इमेज हमें चेंज, इमेज भी क्या आएंगी, सर्कल ही आएंगी। सो विच इज रिक्वायर्ड इमेज ऑफ सर्कल mod z is equals to, so we get that equation and that is the image of circle mod z is equals to 2, which is also, यहाँ पे अगर लगे तो आप लिख सकते हैं which is a circle। पर ये सर्कल कौन से प्लेन में है, it is a circle in a w plane, which is in a w plane, which is a circle in a w plane and which is the required image of the
सर्कल मॉड z इज इक्वल टू 2। कैसे निकाला आपको समझ में आया गया होगा, लगे तो एक बार और ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, वी पुट द वैल्यू w, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू कंसिडर की z और w की। इस ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों की वैल्यू हमने पुट की। दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद हमने यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट किए। फ्रॉम दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ u एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ v। दोनों की वैल्यू लेने के बाद उस रिलेशन से हमने x और y की वैल्यू निकाली। फिर हमें जो रीजन दिया था दैट इज मॉड z इज इक्वल टू 2। सो मॉड z इज इक्वल टू 2 को हमने सिंप्लीफाई किया। दैट मॉड z इज नथिंग बट यहाँ पे x प्लस आई वाई है, दैट इज मॉड ऑफ x प्लस आई वाई। अब मॉड जब हम लेते हैं x प्लस आई वाई का तो वो होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इससे तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, सो वी टेक अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये सर्कल का इक्वेशन हमें दिया है, सो इसकी इमेज निकालने के लिए हमने ये रिलेशन यूज किया। कौन सा रिलेशन, जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन से मिला। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था एंड फ्रॉम दैट ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन वी पुट दैट वैल्यूज x and y in terms of u and v and then we get that equation in terms of u and v. Okay, so that is nothing but a equation of circle which is the required image of circle mod z is equals to 2. So hope you understand that. अब आगे का एक और प्रॉब्लम हम देखेंगे। Now we comes on the next problem, that is we have to prove that the transformation w equals to z square that transform the circle mod of z minus 1 equals to 1 into the cardioid rho is equals to 2 into 1 plus cos phi. We have given here w but we don't have given the value of z, so we have to consider the value of z. w equals to rho into e raised to i phi. अब यहाँ पे w हमें दिया है पोलर फॉर्म में। अब रहा सवाल कि z कैसे ले, z को कार्टेशियन फॉर्म में ले या पोलर। अब अगर इमेज उसकी हमें पोलर में दिख रही है तो हमें यहाँ पे z भी पोलर में ही लेना है। सो रिमेंबर दैट थिंग। अगर किसी रीजन की इमेज हमें पोलर में दिख रही है, उसका जो अनदर पार्ट है दैट इज w इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ पोलर, सो ऑब्वियसली वी टेक द z इन द फॉर्म ऑफ पोलर। पोलर में ही हम z को लेंगे। सो वी कंसीडर हियर लेट z इज इक्वल्स टू r into e raised to i theta and what we have given that w equals to rho into e raised to i phi. Okay, अब हमारे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, what we have given here, given ट्रांसफॉर्मेशन है w equals to z square, we give it इक्वेशन नंबर 1. so हम ये वैल्यू जो है जो हमने यहाँ पे पुट की है z की और w हमें दिया है, अभी ये इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। तो w क्या है हमारा, w इज अ रो into e raised to i phi इक्वल्स टू z स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा r e raised to i theta होल स्क्वायर। ओके, सो हाउ वी राइट दैट गिव्स रो e raised to i phi इज इक्वल्स टू r स्क्वायर e raised to, यहाँ पे हो जाएगा 2i theta। क्या लिखेंगे हम, 2i theta। अब अगर यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट हम कलेक्ट करेंगे या फिर रेडियस वेक्टर इक्वेट करेंगे या फिर एंगल इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इम्प्लाइज रो इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा और फाई इज इक्वल्स टू 2 थीटा हो जाएगा। क्या रिलेशन आ रहा है, रो इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एंड फाई इज इक्वल्स टू 2 थीटा। जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में हमें u v और x y का रिलेशन लिया था फ्रॉम द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे ही यहाँ पे हमने गिवन ट्रांसफॉर्मेशन से रो और आर का और फाई और थीटा का लिया। सो ये रिलेशन हमें बाद में यूज करना है जब हम इमेज निकालते हैं। सो हमें क्या है, हमारे पास रो इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एंड फाई इज इक्वल्स टू 2 थीटा। अब हम आते हैं जो हमें रीजन दिया है, हमें निकालनी है इमेज ऑफ द सर्कल मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू 1। सो गिवन रीजन है हमारा मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अब हमें पता है कि हमने z की वैल्यू क्या ली थी, r इंटू e रेज़ टू i थीटा, तो हम यहाँ पे वो वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज मॉड ऑफ r इंटू e रेज़ टू i थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ओके, अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, r इंटू e रेज़ टू i थीटा को। तो r इंटू e रेज़ टू i थीटा को कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे हम साइन और कॉस के फॉर्म में। अब आप लोग बोलेंगे मैडम व्हाई वी राइट इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। अब अगर यहाँ पे इसकी इमेज देखेंगे तो यहाँ पे कॉस की टर्म दिख रही है, मतलब उन्होंने क्या किया है, उसको कन्वर्ट किया है कॉस साइन के फॉर्म में एंड देन आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन वी गेट दैट। ओके, सो आर तो एज इट इज रखेंगे, पर हमें ई रेज़ टू आई थीटा की वैल्यू पता है क्या रहती है, इन फॉर्म ऑफ कॉस साइन, दैट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हम कैसे लिखेंगे, कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये हो गए हमारी वैल्यू। ओके, अब हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर देंगे।
तो अब क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन। ओके, अब ये हो गई इतने पार्ट की वैल्यू, बट हमें चाहिए आर ई रेस टू आई थीटा माइनस वन, सो वी कंसिडर आर ई रेस टू आई थीटा माइनस वन। तो वो क्या होंगी, दैट इज आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, उसके बाद माइनस वन। अब अगेन हम रियल और इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट कर देंगे। सो ये हो गया आर कॉस थीटा माइनस वन प्लस आई इंटू आर साइन थीटा। अब ये हो गया हमारा रियल पार्ट इस टर्म का, इस टर्म का ये रियल पार्ट हो गया, और ये हो गया हमारा इमेजिनरी, दैट इज आर कॉस थीटा माइनस वन और यहाँ पे प्लस आई आर साइन थीटा। अब जब हम मॉड कंसीडर करेंगे, इस टर्म का मॉड कंसीडर करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, दैट इज मॉड ऑफ आर ई रेस टू आई थीटा माइनस वन। अब जब हम मॉड लेते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमें पता है कि मॉड क्या रहता है, इफ वी टेक अ मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये तो हो गया इसका रियल पार्ट इस टर्म का, और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, मतलब उसका स्क्वायर हमें लेना है, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें वन दिया है, दैट इज इक्वल्स टू वन। सो दैट इम्प्लाइज यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर कॉस थीटा माइनस वन होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा आर साइन थीटा इट्स होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू वन। अब अगर ये रूट में रहेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करना तो पॉसिबल नहीं है, आगे की साइड आ जाते हैं। सो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये होगा हमारा अंडर रूट ऑफ आर कॉस थीटा माइनस वन होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा एंड इट्स स्क्वायर, एंड दैट रूट इज इक्वल्स टू वन। ओके, अब हम क्या करेंगे, रूट से बाहर निकाल लेंगे तो और इजी चला जाएगा प्रॉब्लम हमें। सो वी टेक अप्लाई द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और अप्लाई स्क्वायर, और वी कैन से टेक अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेक अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड से स्क्वायरिंग किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर कॉस थीटा माइनस वन होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर भी लिया हमने, तो वन का स्क्वायर वन ही आने वाला है। ओके, सो इन दिस वे अब इसका करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन, अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी। तो ये टर्म हो जाएंगी हमारी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, मिडल टर्म माइनस में आ जाएंगी, माइनस टू इंटू आर कॉस थीटा, लास्ट टर्म प्लस वन आ जाएंगी, ये हो गई इसका एक्सपेंशन। अब आगे की तरफ आ जाते हैं, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू वन। अब थोड़ा अगर अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा है। आप लोगों को आइडिया आ गई होंगी, आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, सो आर स्क्वायर निकालने के बाद ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया माइनस टू आर कॉस थीटा। ओके, ये प्लस वन, ये प्लस वन, इधर जो वन है इसको यहाँ पे अगेन ला लिया, तो ये भी हो गया माइनस वन। सो प्लस वन माइनस वन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, सो सिंप्लीफाई दैट, ये हो गया, इसकी वैल्यू तो वन आ जाएंगी, यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, सो आर स्क्वायर दैट बिकम अ वन, सो आर स्क्वायर इंटू वन माइनस टू आर कॉस थीटा, ये प्लस वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, सो हाउ वी राइट, वी कैन टेक आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये टर्म इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, टू आर कॉस थीटा। अब हम एक आर कैंसिल कर देंगे, यहाँ से एक आर कम हो जाएगा, सो हमें क्या मिल जाएगा, आर इज इक्वल्स टू टू कॉस थीटा। हमें क्या मिल जाएगा, आर इज इक्वल्स टू टू कॉस थीटा। ये तो हो गई आर की वैल्यू थीटा के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब अगर थोड़ी यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे जो इमेज दी है वो रो के फॉर्म में, रो शुड बी इक्वल्स टू टू इंटू वन प्लस कॉस। अब हमारे पास रिलेशन भी है कि रो इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब हमारे पास आर है, अगर हमने आर को स्क्वेयरिंग कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, रो मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टेक अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेंगे, टेक अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम
यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर, यहाँ पे हो गया है 2 cos थीटा का स्क्वायर, सो दैट इज नथिंग बट 4 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब आपके पास जो रिलेशन है कॉस स्क्वायर थीटा का वो थोड़ा सा यहाँ पे हमें यूज करना है। Now we take that term on that side, so it gives r square is equals to 4 cos square of theta। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेशन यूज करेंगे, हमें पता है कि 2 cos square theta is equals to 1 plus cos 2 theta, ओके। बट हमारे पास सिंपली cos square theta है, तो हम यहाँ पे cos square theta को कैसे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हमें 2 एडजस्ट कर देंगे, तो 2 इंटू 2 cos square theta हो जाएगा, ओके। सो दैट इज नथिंग बट 1 प्लस cos 2 theta। सो r square इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस cos ऑफ 2 theta, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हमें पता है कि 1 प्लस cos 2 theta, अब 2 theta क्या है हमारे पास, 2 theta इज नथिंग बट 5, तो हम यहाँ पे 5 यूज़ करेंगे। हमने ऑलरेडी इसको इक्वेशन दी है तो ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि एस 5 इज इक्वल्स टू 2 थीटा एंड देयरफॉर, और हमारे पास रो इज इक्वल्स टू क्या है, एंड रो इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देयरफॉर ये चेंजेस हम अब इक्वेशन में करेंगे, तो रो इज इक्वल्स टू 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इज रिप्लेस बाय 5, एंड इन दिस वे व्हाट वी गेट द रिक्वायर्ड इमेज, ओके। सो वही हमें प्रूव करना था, एंड विच इज द रिक्वायर्ड इमेज ऑफ गिवन रीजन। यहाँ पे लिख लो लगे था, विच इज रिक्वायर्ड इमेज, जो हमें प्रूव करना है, ओके। सो इन दिस वे वी गेट दैट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दैट। और कुछ प्रॉब्लम मैं आप लोगों को यहाँ पे असाइनमेंट के लिए देती हूँ। So these are 2 problems for your homework. Consider the transformation w equals to e raised to I pi by 4 into z, I pi by 4, ये e को मल्टीप्लिकेशन में है z, e into z, e raised to I pi by 4। We have to determine the image of the region in a w plane corresponding to the region which is bounded by। अब यहाँ पे जो रीजन है हमें दिया x is equals to 0, y equals to 0, x plus y equals to 1 in a z plane, and we have to find the image of that region by using that relation or that transformation w equals to e raised to I pi by 4 into z, okay। So आंसर भी हमने दिया है, x is equals to 0 रहेगा तो वो मैप क्या करेगा, u equals to minus y by root 2, v equals to y by root 2, y equals to 0 मैप करेगा, u equals to x by root 2, v equals to x by root 2, x plus y equals to 1 मैप करेगा, v equals to 1 by root 2। तो ये आपको निकालना है। फ्रॉम दैट ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव टू टेक अ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड यू वी। यहाँ पे आपको z की वैल्यू x प्लस आई वाई लेनी है, w की u प्लस आई वी क्यों लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें इमेज मिल रही है वो u v के फॉर्म में, और जो है रीजन वो x y के फॉर्म में। सो यू हैव टू टेक इन दिस फॉर्म। सेकंड है ये ट्रांसफॉर्मेशन है w इक्वल्स टू z प्लस इन ब्रैकेट 1 माइनस i। ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, हमें इमेज फाउंड करनी है रीजन की, जो रीजन बाउंड हुआ है x इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 इन, और उसकी इमेज हमें फाइंड करनी है w प्लेन में। तो आंसर है इसका u इक्वल्स टू 1, v इक्वल्स टू 1, u इक्वल्स टू 2 एंड v इक्वल्स टू 1। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये रिलेशन यूज करके हमने इसकी इमेज निकालनी है गिवन रीजन की। सो ये इस फॉर्म में है, दोनों आप चेक करके देखो, इसको अच्छी तरह से सॉल्व करो और आंसर निकालो। सो यू विल बी स्टॉप हियर।